अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब साथियों मेरी प्यारी बहनें अपने घर में खैर आफियत से होंगी इंशाअल्लाह। अब हम अपनी क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं तिलावत कुरान से। मैं अपनी प्यारी सी बहन जुवेरिया को दावत देना चाहूंगी, वो आएं और तिलावत करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशाअल्लाह सूरह अलग की आयत नंबर 19 तक तिलावत करूंगी और इसकी आखिरी आयत सजदे तिलावत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ پیاری سی بہنوں سب سجدہ تلاوت کر لیں اور اپنے جو نام ہیں جو آپ نے رجسٹر کروائے ہیں اسۃ القرآن میں، وہی نام سے آپ لاگ ان کریں۔ بہنوں آپ لوگ ایک نام سے لاگ ان کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے اور یا ہسبینڈ کے نام سے آپ زوم میں آتے ہیں تو ہم کو اٹینڈنس جاننے کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پلیز آپ یا نہیں تو آپ لکھ دیں کہ بھائی اسۃ القرآن میں آپ کا نمبر فار ایگزامپل S64 ہے، X64 میں سکینہ فاطمہ سے لاگ ان کر رہی ہوں یا میں جویریہ سے لاگ ان کر رہی ہوں، ایسا کچھ لکھ دیں تاکہ ہم کو بھی فیسلٹی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ابھی ہماری بہن روزی ٹیچر، ہماری پیاری سے ٹیچر کو دعوت دینا چاہوں گی، وہ آئیں اور ہمیں امہات المومنین کے دوسری شخصیت کو ہم سے تعارف کرائیں۔ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ اسرۃ القرآن 2020 now presenting امہات المومنین۔ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں۔ کون ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیویوں نے مومنوں کی مائیں، یہ لقب اللہ نے دیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں۔ الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے ابھی بہت پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم لوگ بات رکھیں گے امہات المومنین زبیریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ زبیریہ بنت حارث
तो उनका वालिद, पहले उनका नाम था बर्रा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर रखा जुवेरिया। जुवेरिया का माने होता है यंग गर्ल। तो उनका वालिद का नाम है हारिस बिन अबी दिरार, हारिस बिन अबी दिरार, जो कि कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार थे, कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार। तो यानी जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा ने एक कबीला का सरदार की बेटी, बहुत लाड प्यार से ही पाल पोस हुआ था। वक्त पर जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा का शादी हुआ था, यानी रसूलुल्लाह से पहले जो शादी हुआ था वो अपनी चाचाजाद भाई के साथ। तो ये फर्स्ट मैरिज जो हुआ था किसके साथ हुआ था? अपनी जुबैरिया की चाचाजाद भाई के साथ, यानी काजिन के साथ। ये तो बहुत पहले से ही ये रीति रिवाज है। सरदार की बेटी दूर देना भी नहीं चाहा, अपना घर में रिश्ता जोड़ा था, तो चाचाजाद भाई के साथ जुबैरिया की शादी हुई थी पहले। तो जुबैरिया की बाप कौन? हारिस और उसके शौहर हस्बैंड, वो दोनों ही इस्लाम के सख्त खिलाफ में थे, दुश्मन थे। कुरैश का बहकान में या अपना इच्छा में ही ये कबीला बनु मुस्तलिक मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया। मदीना पर हमला करने के लिए वो लोग प्रिपेयर हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज पर बाखबर रहा करते थे, हर चीज से उन्होंने जानकारी रखा करते थे, हर एक इंसान के लिए भी और आसपास में भी क्या चल रहे हैं हर चीज उन्होंने बाखबर रहने का कोशिश करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिला है कि कबीला बनु मुस्तलिक ने ये इसी तरह तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने ये खबर का सच्चाई जानने के लिए एक आदमी को वो स्पॉट में भेजा। कहाँ? कबीला बनु मुस्तलिक के वहां भेजा। किसे भेजा? बुराइदा इब्न हबीब अस्लमी को, कि वो जाएं और खबर का सच्चाई जानकर आए। बुराइदा ने गए कबीला बनु मुस्तलिक के वहां, फिर आकर खबर दिया कि हाँ सचमुच बनु मुस्तलिक तैयार हो रहे हैं मदीना पर हमला करने के लिए। तो क्या अभी अपना हाथ में हाथ डाल के बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, इसका मुकाबला करने का है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फौज, अपना आर्मी लेकर बनु मुस्तलिक के तरफ रवाना हुए और मुरैसी नाम का मुरैसी एक जगह का नाम है, वहां जाकर ठहरे। मदीना से अपना फौज लिया, बनु मुस्तलिक के तरफ रवाना हुए और मुरैसी नाम का जगह में ठहरे। ये सब कब हुआ? हिजरी 5 साल में। हिजरी 5 साल, तब शाबान महीना चल रहे थे। ज्यादातर रिवायत में यही है, डिफरेंट रिवायत में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहते हैं, हम बिल्कुल वो लेके बहस में नहीं पड़ेंगे। तो फिर शुरू होता है, यही होता है जंगे बनु मुस्तलिक, क्योंकि ये जो मदीना से ईमान वालों निकाल कर आए हैं, फिर मुरैसी में ठहरे, ये खबर बनु मुस्तलिक पर पहुंच गए और बनु मुस्तलिक का जो सरदार कौन है? हारिस, जो कि जुबैरिया की बाप भी, वो भाग गए। लेकिन उनका फौज, उनका आर्मी बहुत मजबूत थे, वो पीछे नहीं हटे। ईमान वालों के साथ लड़ाई शुरू हुआ और आखिर में मदीना का ईमान वालों का जीत हुआ। यह जंग में कबीला बनु मुस्तलिक का 11%, 11 आदमी खत्म हुए और 600 करीब आर्मी कैद हुए, 600 करीब लोग कैद हुए, कैप्टिव, और बहुत सारे ऊंट बकरी सामान हाथ में आए। ये जो जंग बनु मुस्तलिक, इसमें जुबैरिया की हस्बैंड वो भी खत्म हुए। तो मदीना के ईमान वालों ने कैदियों को साथ में लेकर मदीना आए हैं। ये कैदियों में कबीला का सरदार कौन थे? हारिस, उसकी बेटी यानी जुबैरिया भी थी। ये कैदियों में जुबैरिया भी थी। और अरब का रिवाज था कि कैदियों को तकसीम कर दिया जाता था एज अ स्लेव, गुलाम दासी बांदी के शक्ल में तकसीम कर दिया जाता था। तो इसी रिवाज के मुताबिक जुबैरिया को भी तकसीम कर दिया गया और उस साबित इब्ने कायस के हिस्से में आए।
जुबैरिया सरदार की बेटी थी, तो उन्होंने ये जो कैप्टिव लाइफ ये उन्होंने पसंद नहीं किया, उन्होंने फिदाया देके रिहा का अर्ज किया। तो साबित जिसका हिस्सा में आई थी, साबित ने बहुत माल डिमांड किया, तो इतना माल जुबैरिया के पास नहीं था, तो जुबैरिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही उसका बाप का जंग हुआ था और उसी में वो कैप्टिव होके आई। तो जुबैरिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। ये वाकया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी तरह रिवायत की। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि जुबैरिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह, मैं हारिस बिन अबू दिरार की बेटी हूँ, मेरा बाप कबीला का सरदार है, मैंने जो मुश्किल में हूँ, जो मुसीबत में हूँ वो आप जानते हैं, मैंने साबित इब्न कैस के हिस्से में आई हूँ, मेरा फिदिया का अदायगी में आपका मदद मांगती हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम कि अगर मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छा कुछ इंतजाम करे तो। जुबैरिया ने पूछा वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी तरफ से फिदाया अदा कर देंगे, फिर तुम्हें रिहा करेंगे, फिर तुमसे शादी करेंगे। जुबैरिया ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं राजी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। ये मुजाहिद की रिवायत से ये भी मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूज अमाउंट पे किया था जुबैरिया के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैरिया से जो शादी किया था, ये पॉलिटिकल सिचुएशन के तरफ ध्यान रखते हुए, यह बहुत ही हिकमत वाला डिसीजन था। बनु मुस्तलिक का सारे आदमी ईमान वालों के खिलाफ थे, दुश्मन थे, किसी भी हाल में वो रसूलुल्लाह या ईमान वालों को मानने में राजी नहीं थे। ऐसा हालत में ये जंग होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हु को शादी किया, तो क्या हुआ कि जंग में जो कैदी आए थे सबको रिहा कर दिया गया, सबको रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा किया? अरे बनु मुस्तलिक के बेटी जुबैरिया आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी हैं, तो बनु मुस्तलिक तो कुटुंब रिश्तेदार हो गया, ससुराल वाले बन गए हैं ना, तो कैसे कैदी रखे? तो उन लोगों को रिहा कर दिया। तो बनु मुस्तलिक ये एहसान कभी नहीं भूले, हमेशा इसका कदर किया। और बनु मुस्तलिक का किसी ने कभी भी इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ईमान वालों से दुश्मनी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे सभी ने ईमान अपनाए। सुभान अल्लाह। सच में अपने कौम के लिए जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से अच्छा खैर खा किसी ने साबित नहीं हुई। तो उनका कैरेक्टर कैसा था, थोड़ा हम देखते हैं कैसी थी जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। कि जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने बहुत पर्सनालिटी थी, सेल्फ कॉन्शियस लेडी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी, इसीलिए कैदी का जिंदगी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जुबैरिया बहुत सुंदर थी और सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि चार्मिंग पर्सनालिटी थी। उसके किरदार में एक नरमी थी, जो भी उसके करीब आते थे उसे इज्जत करने लगते थे, पसंद करने लगते थे, वो सबको मोह लेती थी और अजवाजे मुताहरा के साथ मिलजुल कर रहती थी। बहुत ही दीनदार थी, अल्लाह से डरने वाली थी, हमेशा सच बोला करती थी, शौक से इबादत किया करती थी, इबादत निहायत खुशू खुजू से करती थी। रोजा में खास शौक था, जिक्र अज़कार तस्बीह में मगन रहती थी, बहुत ही फरमाबरदार थी। इब्न सआद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। उस दिन जुम्मा के दिन था और जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोजा में थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम पिछले दिन यानी यस्टरडे रोजा रखी थी? तो जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पूछा, क्या अगले दिन यानी टुमारो रोजा रखोगी, इरादा है? तो जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आज का रोजा तोड़ दो, ब्रेक कर दो। तो जुबैरिया ने ऐसा ही की।
स्लाइड नहीं आ रहा है, कोई आवाज ठीक है अफरोजा? ओके, तो हाँ बात क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके, तो जुबैरिया की वजह से उनका पूरा कबीला बनु मुस्तलिक ईमान लाए थे। जो इनकारी थे वो ईमान वाले बन गए। तो इसीलिए आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि अपना कौम के लिए जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा ब्लेसिंग वाला और कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बहुत ज्यादा हदीस तो रिवायत नहीं की, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हदीस में वो बहुत कम हदीस रिवायत की, 7 हदीस रिवायत की। इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा से हदीस रिवायत की। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया एक हदीस। जुबैरिया ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह सवेरे फजर के नमाज पढ़ के जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा के घर से निकले। जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा तब सिजदा की जगह पर थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर में वापस आके देखा कि वही सिजदा के जगह पर ही बैठे हैं। तो आपने बताया, तुम्हें जो हालत में छोड़ के गया उसी हालत में अभी तक हो? जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा ने बताई, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 4 शब्द 3 दफा जिक्र करता हूँ, इसका वजन उससे ज्यादा होगा जो तुम सुबह से कर रहे हो। क्या है वो 4 शब्द? वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। यानी इसका रिवार्ड क्या है? जो नेक्स्ट इसका रिवार्ड इक्वल टू डूइंग कंटिन्यूअस इबादत फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक कंटिन्यूअस अगर इबादत करे तो वो इक्वल होगा अगर ये दुआ 3 दफा पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे। तो उनका वफात कब हुआ था? हिजरी 50 ईयर ऑफ हिजरी साल 50 हिजरी में जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल की। तब उनका उम्र हुआ था 65 करीब 65 ईयर एज हुआ था। और उसी टाइम मदीना का गवर्नर थे मारवान। तो मदीना का गवर्नर जनाजा की नमाज पढ़ाई और जन्नतुल बाकी में दफनाया गया। तो ये था इन शॉर्ट जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा का जो लाइफ। तो उनका लाइफ में बहुत ही हम देखा कि सरदार की बेटी थी, फिर कैदी बनकर आई थी, यानी बहुत अप्स एंड डाउन्स था। तो उनका जिंदगी से भी हमें बहुत सबक मिलता है, बहुत लेसन मिलते हैं। हम तो एटलीस्ट 1-2 का जिक्र करेंगे और अपना जिंदगी में अपनाने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो सबक मिलते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट की। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स है। जुबैरिया कबीला की सरदार की बेटी थी, लाडली बेटी थी, और आज बन गया कैदी। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें इस हाल से निकालने का रास्ता सुझाया। कितना वाइज तरीका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ही सरदार की बेटी हूँ, अभी हालत मेरा ऐसा है, ये बुरी हालत से निकालना चाहती हूँ, आपका मदद मांगती हूँ। तो ये तमाम वाकया में, ये तमाम इंसिडेंट वाकया में विजडम, पर्सनालिटी, जो मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबक मिलते हैं, लेसन हमें मिलते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें कोशिश करना चाहिए, सोचना चाहिए। अदरवाइज ऐसा हालत में लोग पजल हो जाते हैं, क्या करें, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने निकालने का हालत सोचा और निकले भी। जिसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरा कोई उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मार्केट का सामान नहीं कि पैसे से परचेज करे या परचेज करके और किसी को दे, बल्कि अपना पर्सनालिटी, हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारे काम के जरिए ये चीज किरदार में पैदा होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि हम भी जुबैरिया रजी अल्लाह अन्हा से ये सबक लें। हमारा जो खामी यानी जो वीकनेस जो है वो दूर करेंगे। खूबी जो गुडनेस हम में है उसका तरबियत के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, कोशिश के जरिए हम उसे बाहर लाएंगे। खामी नहीं खूबी है। तो अपना आप
को ही रेस्पेक्ट कर पाएंगे और दूसरा भी तब रेस्पेक्ट करेंगे, और जिंदगी के तमाम मुश्किलात से मुकाबला करके हम ईमान और इज्जत की जिंदगी जिएंगे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। आज इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम दूसरा उम्महातुल मोमिनीन के साथ हाजिर होंगे। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।